Hello my dear students, how are you all? Hope you are fine and doing well. So I welcome you to today's YouTube lecture. So in the last lecture we studied about the rate of reaction. So what is the rate of reaction? We studied the average rate of reaction, the instantaneous rate of reaction, and then we also did some numericals regarding this rate of reaction, and we did the mathematics of it. So today we are going to discuss about what's the factors which affect the rate of a chemical reaction, or we can say the factors on which the rate of chemical reaction depends. So although today's lecture is a little theoretical one, so we won't be doing any numericals, but it will be a short lecture, maybe around 30 to 40 minutes lecture. We'll be studying some important factors which affect the rate of a reaction. So I welcome you to this platform of Chemistry Wallah, and I would request you all, if you find these lectures useful, so I would like you to subscribe to this YouTube channel, because it's free of cost. You do not pay anything for subscribing to the YouTube channel, and you also press the bell icon so that you can get the latest notifications that be coming of the future lectures of these different topics here. So let's start today's topic. So today we'll be studying the factors which affect the rate of chemical reaction. So we will keep the heading that's factors affecting the rate of reaction, or on which or depends. So the first factor is it's your nature of reactant. Nature of reactant. So rate of reaction depends upon the nature of reactant. Now in nature of reactant we will first discuss like ionic reactions. Ionic reactions. Now ionic reactions, you know, they are very fast reactions. They are very fast reactions. They take place in, we can say, microseconds. For example, you have a reaction, let's suppose NaCl plus AgNO3, it gives you, now you have here Na positive, Cl negative, and it's in the solution. You have Ag positive, NO3 negative. So you get AgCl, that is a white precipitate, plus NaNO3, sodium nitrate. So these reactions are very fast reactions. Now your rate of reaction is very high in such reactions. Even you can say that these reactions take place in microseconds, 10⁻⁶ seconds. Now the second one is you have what's called as covalent reactions. Now you have covalent reactions. The covalent reactions, for example, like your molecular reactions, or we can say these are like your molecular reactions. Let's suppose you have N2 plus 3H2, a very popular reaction. In famous reaction, we get 2NH3, leads to formation of ammonia. So what happens here is, you have N triple bond N, and you have H single bond H. And then here you have a new bond will form, nitrogen will form 3 bonds with hydrogen, that's NH3. So these bonds will break here. So these bonds will break, and this bond will form actually. So it takes some time. So it's a time-taking process. Now it takes time for these bonds to break and then these new bonds to form. So it's a time-taking process. So this shows how it depends on nature of reactant. Like here, in case of the ionic reactions, you have these these ions are already present in the solution. When you have a solution, you have these Na positive and Cl. Now the only thing is these ions have to they have to interchange. This Na plus will go with NO3 minus, this Cl minus will go with Ag plus. So that's why actually these reactions are very fast reactions as compared to these covalent reactions or molecular reactions. So this shows how it depends on the nature of the reactant. Now let me delete this. I hope you are taking the notes. You are not
taking the notes. Like it's very always better to take the notes. Whenever teacher is teaching in the class, it's better to take the notes. It's because whatever you learn in the class, you can just remember it for a long period of time. Then the third, let's see, we have like homogeneous reactant, and then you have a heterogeneous reactant. Now your homogeneous reactant, the rate of reaction in this case and rate of reaction here, rate of reaction for a homogeneous reactant is always greater than the rate of reaction for your heterogeneous reactant, because like you have a same reactant here, homogeneous, so you have a same reactant, you have different reactants. Now what happens here is like when you have a same reactant, so for example your reactant is like this, it's like this, same. So the interaction of the reactant is very easy in this case, like it's the same reactant. Now here you have different reactants. For example, some reactants like this, the other one is like of this shape, the third one is like this, and then you have some like this. So it's very difficult, the interaction is very difficult among the reactants, because reactants have to react, then they will form the product actually when the reaction will happen. So rate of reaction, like rate, here rate is high, rate is fast here, and in this case rate is slow. Rate is slow because like the reactants are same, so they will have same, almost similar nature or same nature, but here they will have different nature, so it's very difficult for the interaction to take place. So these things actually will slow down the rates. And then the third one, actually, now let me delete this also. The third one is your, what's called as stability of the product, the reactant. Now the D is stability, like your rate of reaction, that's rate of reaction is directly proportional to the stability of the product, and it is inversely proportional to the stability of reactant. Now rate of reaction is directly proportional. The more stable the product is, the higher will be the rate of reaction. जितना आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, जितना वो स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगी. यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट. अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, you have to note this down here. If your reactant is more stable, so your rate of reaction will be less, because क्योंकि वो already stable है, so वो react करना नहीं चाहेगा. जो कोई भी प्रोडक्ट, जो कोई भी केमिकल रिएक्टेंट जो है आपका स्टेबल होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो कोई रिएक्शन कर ले. इसलिए जो भी रिएक्टेंट आपका ज़्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्शन कम करेगा, जो कम स्टेबल है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी. That's why we are saying rate of reaction is directly proportional to stability of the product. It's inversely proportional to stability of the reactant. It's a very important thing to note here. Now what happens here is, for example, you have a reaction, let's suppose CH3COOH, it's your acetic acid. Now when it gives in the solution, it gives CH3COO minus plus, it yields furnishes from H plus. Now in this case, let's suppose rate of reaction, I call it first. Now second one is HCOOH, that's formic acid. It will, in the solution, it will form HCO minus plus, it will give one H plus. Now in this case, let's suppose I call ROR second, there is rate of reaction in second case. Now what happens here is, like you can see, you have a methyl group here. In this case, you have a methyl group. This is the methyl group, and you know what, methyl group has it has electron pushing capacity, this capability, so it pushes the electron towards away from itself. So इसकी जो है इलेक्ट्रॉन को टकेलने की कोशिश करता है, अपने से दूर करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन को. तो ये जब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये पुश कहाँ करेगा, CO माइनस की तरफ. तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका माइनस चार्ज है, तो इस पे और जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इस पे और चार्ज आ जाएगा,
तो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो कभी नहीं चाहता है कि उस पर कोई चार्ज आ जाए, क्योंकि चार्ज मीन्स अनस्टेबिलिटी। अगर आप न्यूट्रल है दैट मीन्स यू आर स्टेबल, तो ये और स्टेबल है दैट मीन्स दिस इज एन अनस्टेबल प्रोडक्ट। एज कंपेयर टू दैट दिस इज एक्चुअली अ स्टेबल प्रोडक्ट, ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट है। तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, तो स्टेबल ज़्यादा ही है। तो दैट मीन्स इन दिस केस दैट्स ROR सेकंड विल बी ग्रेटर देन ROR फर्स्ट। ये आपका यहाँ पे रिजल्ट निकल रहा है। तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो यहाँ आपने देखा जो आपका ये CH3CO- है ये आपका लेस स्टेबल है और ये आपका ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। कंपेयरिंग द टू वी कैन से HCO- इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू CH3CO-। So this was actually the nature of the reactant. So how your reactant actually affects the rate of reaction. Let me delete this. I hope you are taking the notes. I request the students to take the notes of the whatever we have been taught here. Now second is your physical state of reactant. Physical state of reactant. जो आपका रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है, उस पर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका जो है गैस है फर्स्ट, एंड सेकंड लेट सपोज इज लिक्विड, एंड थर्ड इज लेट सपोज सॉलिड। Now rate of reaction in gases is greater than liquids, which is greater than solids. जो हमेशा गैस में जो रेट ऑफ रिएक्शन वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, और लिक्विड्स में जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्योंकि आपके जो गैस होते हैं, गैसेस में क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपकी गैसेस में वो बहुत जो है दूर दूर होते हैं, दे फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे होगा तो आपका जो होता है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ गैसेस में आपका रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उनकी जो चांस होता है आपस में कोलाइड करने के ज़्यादा होते हैं, तो द चांस ऑफ कोलिजन आर मोर। तो यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे होगा, तो आपस में एक से टकराते हैं तो कोलिजन्स हो जाते हैं, उसकी वजह से उनके बीच में रिएक्शन होता है। और लिक्विड्स में जो है उससे कम होते हैं, और सॉलिड्स में तो टाइटली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये होते हैं ऐसे, सॉलिड्स में पैकिंग होती है, या आपका कोई दूसरा सॉलिड होगा तो दे आर टाइटली पैक्ड इन केस ऑफ सॉलिड्स, टाइटली। तो यहाँ रिएक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, इसमें बहुत स्लो होती है रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनकी पैकिंग जो होती है टाइट होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वजह से कम होता है। तो गैसेस में ज़्यादा होती है, जो आपके जो मॉलिक्यूल्स वो रैंडम मोशन में होते हैं तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं, और लिक्विड्स का इनके बीच में है, तो गैसेस से थोड़ा सा ज़्यादा है और सॉलिड से थोड़ा सा, गैस से थोड़ा सा कम है और सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट हो गया, जिस पे वो डिपेंड करता है, उसमें गैस है लिक्विड है, तो गैस में जो है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, वी कैन से ROR इज मोर, इज ग्रेटर देन ROR। यहाँ पे अगले सो G, यहाँ पे लिक्विड्स, और यहाँ पे ROR लेट सपोज सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स में ज़्यादा, सॉरी गैस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड्स विच विल बी मोर देन एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब ये आपका फिजिकल स्टेट हो गया, आप नोट कर लीजिए। If you want to note, you can note it. And you can also pause the video while you will watch the video. You can also pause it so that you can take note of the things. Now the third one is your, तीसरा जो आपका है वो है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इसकी जो ज़्यादातर जो ये वैलिड है, ये आपका सॉलिड रिएक्टेंट्स में जो है ज़्यादा इसका रोल है। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट्स। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, योर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट।
जितना आपका सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतना, यानी ये जितना आप बढ़ाओगे सरफेस एरिया, जितना भी आपका रिएक्टेंट को बढ़ाओगे उतने आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आई गिव एन एग्जांपल, ट्राई टू एक्सप्लेन यू एन एग्जांपल। आपके पास लेट्स सपोज यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और कप ऑफ टी। लेट्स सपोज दिस इज ए कप ऑफ टी। इसके अंदर लेट्स सपोज आपने टी आपके, नाउ यू हैव टू ऐड द शुगर। आपको इसमें शुगर ऐड करना है, चीनी मिलानी है इसमें। तो आप जानते हो आजकल बहुत सारे लोग जो वो डायबिटिक होते हैं, सो दे आर वेरी कॉशियस अबाउट द शुगर। सो वो उनका अपना एक रूटीन होता है कि वो शुगर जो है कम लेते हैं। तो लेट्स सपोज नाउ यू हैव टू, आपके दो तरीके हैं शुगर के। एक जो है आपकी क्यूब्स ऑफ शुगर है, जैसे आप होटल्स वगैरह में जाओगे, देयर आर शुगर क्यूब्स, दीज आर क्यूब्स ऑफ शुगर। दूसरा जो है आपके छोटे छोटे जो है शुगर की पार्टिकल्स हैं, शुगर के से ग्रैन्यूल छोटे छोटे से, शुगर पाउडर। अब अगर आप इसमें क्यूब्स डालोगे इस कप में, तो ये क्यूब जो ये बड़े हैं, इनका सरफेस एरिया जो है वो जो है कम है। अगर इनको आप ऐसे कट करोगे, लेट्स सपोज यू वांट टू ब्रेक देम लाइक दिस, आप इनको ऐसे ब्रेक करोगे तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इसमें करोगे, तो बेसिकली जब आप इनको ब्रेक कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। आप उस सरफेस एरिया को क्या कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। यहाँ पे आप इनका सरफेस एरिया, बेसिकली शुगर का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। तो यही बेसिकली आपका रिएक्टेंट है, क्योंकि इसको रिएक्ट होना है, वाटर में इसको मिलना है। तो जब आपने सरफेस एरिया बढ़ाया इसका, तो अब आप इसमें जब डालोगे, अगर आप क्यूब ही डालोगे, खाली क्यूब डालोगे इसमें, तो क्यूब जो है उसको टाइम लगेगा। इसमें जो है आपको जब इसको मिलानी है तो उसमें टाइम लगेगा इसको। जब आप ऐसे डालोगे, जो ब्रेक किया आपने छोटे छोटे इसको पार्टिकल्स में, तो उसमें क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हायर व्हेन शुगर इज ब्रोकन into small pieces। जब छोटे छोटे पीस में आप शुगर को तोड़ोगे तो आपका बेसिकली क्या होगा, आपका एरिया जो है सरफेस एरिया रिएक्टेंट का बढ़ रहा है, तो इसीलिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंगली जो है रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली क्यूब्स को डालोगे तो उसमें आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी एज कम्पेयर टू व्हेन यू ब्रेक दिस शुगर इनटू स्मॉल स्मॉल क्यूब्स। तो जो भी आपकी जो हेटेरोजेनस रिएक्शंस होती है आपकी, तो हेटेरोजेनस रिएक्शंस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है आपका। उसमें हालांकि जो है उसमें हम लोग कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जब कैटलिस्ट जो है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसके सरफेस एरिया पे भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्टेंट की। जितना आपका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो आपका सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्यूब है, इसका सरफेस एरिया लेट्स सपोज 4 है, ये 4 है, तो इसका 16 हो गया। तो अब हम इसको छोटे 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 ऐसे कट कट पीस करके, तो इसका जो सबका जो सरफेस एरिया वो मिला के हो जाएगा। तो दैट मीन्स वो ओबियसली इस सरफेस एरिया से ज़्यादा होगा इनका, जो इंडिविजुअली जो इसको काट के उनका सरफेस एरिया देखेंगे तो इट विल मच हायर देन दिस। सो दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन दैट केस। तो ये तो आपका तीसरा हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। Now we'll come to the fourth one, that is your intensity of light. The fourth one is intensity of light. Now some reactions, कुछ reactions ऐसी होती है जो photosensitive होती है और light sensitive. Now some reactions are photosensitive or light sensitive. Some reactions are photosensitive और लाइट सेंसिटिव। तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। दे आर गिवन अ टर्म इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो सम रिएक्शंस आर फोटोसेंसिटिव। फोटो मींस दैट्स इट रेफर्स टू लाइट। फोटो मींस लाइट, so they are light sensitive. Now in those cases your rate of reaction is directly proportional to intensity of light. Intensity of light.
आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वहाँ पे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो यू कैन से ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें एक एग्जाम्पल है, बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स H न्यू, दैट्स अ फोटोन। जो भी फोटोन होता है उसकी एनर्जी होती है H न्यू होती है। तो यहाँ आपका बनता है 2HCl, ये भी आपका गैस होता है। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है वो डिपेंड करता है किस पे, I पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो डैट मीन्स एज यू इंक्रीज, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब आप बढ़ाते हो, यानी आप इंक्रीज करते हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो बेसिकली आप क्या करते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज। जो फोटॉन्स का नंबर है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज। सो जब फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होएगा तो दैट मीन्स आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज बेसिकली द नंबर ऑफ फोटॉन्स। एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बेसिकली increase. So and automatically the rate of reaction will increase. So rate of reaction is directly proportional to intensity of light. But for those reactions which are photosensitive, जो reactions photosensitive होती है, light sensitive यानी लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, जिनको photochemical reactions है, reactions कहते हैं, उसमें एक प्यारा सा एग्जाम्पल है आपका ये है, जो आपका ये जो है H2 gas plus Cl2 gas, it gives you 2HCl. It's a photochemical reaction. So it takes place in presence of light or H nu, that's photons. Now you can take note of this. So now can I rub the board? कर लिया नोट आपने? Okay, thank you. तो बच्चों ये हमारा चौथा हो गया, जो था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है लाइट के ऊपर भी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दैट वाज योर फोर्थ। Now the fifth one is your catalyst. The fifth one is catalyst. So now is the fifth factor, catalyst. Now catalyst speeds up or down the rate of chemical reaction. जो कैटलिस्ट होता है स्पीड्स अप, या तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है उसको, या तो उसको स्पीड डाउन भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। उससे आपका रेट या तो इंक्रीज भी हो सकता है, या तो कभी कभी सम केस इट कैन एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन कैन डिक्रीज। सो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। सो बेसिकली it sets up an alternate path from the reactor. It sets up an alternate path from the reactor to the product with lower activation energy. तो ये एक ऑल्टरनेट पाथ सेटअप करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में लाने के लिए जिसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो बेसिकली इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं ग्राफ के, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी विल ट्राई टू सी इट। तो अगर हम, सो यू प्लीज टेक नोट ऑफ दिस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। सो व्हाट बेसिकली a catalyst does is, so for example you have this graph here. Now you have an energy here, energy coordinate, and this is some reaction coordinate. पहले क्या होता है आपका, लेट सपोज रिएक्टेंट यहाँ पे होता है, कुछ एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, और ये आपका यहाँ पहुँच के लेट सपोज ये आपका प्रोडक्ट होता है। और ये जो आपकी है बेसिकली दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, this is your activation energy. तो यहाँ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, we can say A एक्टिवेशन एनर्जी, but it is without catalyst.
यहाँ आपका कैटलिस्ट नहीं था, यानी आपकी जो रिएक्शन हो रही थी वो विदाउट कैटलिस्ट हो रही थी, कोई कैटलिस्ट आपने यूज़ नहीं किया। तो अब दूसरा जो आपने कैटलिस्ट जब यूज़ किया तो आपका क्या, आपका रिएक्टेंट जो है यहाँ से शुरू हुआ, ये सेम है, और यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ गया। तो इन दिस केस नाउ योर एक्टिवेशन एनर्जी हैज़ बीन लोवर्ड। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट। यहाँ आपने कैटलिस्ट लगाया है, रिएक्शन की जो आपने कैटलिस्ट से करवाई है, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट इज लोअर देन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। यानी जब आपने कैटलिस्ट लगाया उस वक्त आपकी एनर्जी कम लग गई। बेसिकली कैटलिस्ट ने क्या किया, उसने आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर कर दिया, उसको कम कर दिया। और जब आपने कैटलिस्ट नहीं लगाया था तो उस वक्त आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, आपको ज़्यादा एनर्जी लग रही थी। तो यहाँ तक जो है आपको बेसिकली यहाँ क्या होता है, जब आपका रिएक्टेंट यहाँ से जाता है तो यहाँ पे आपकी सबसे मैक्सिमम होती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिस कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से आपका ट्रांजिशन हो जाता है, ये पूछ के फिर यहाँ से सीधे आपका प्रोडक्ट में चला जाता है। तो ये आपका यहाँ से सीधे आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बन जाएगा उसका। तो दिस इज बेसिकली योर व्हाट्स कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल इस केस में लेट्स सपोज अगर आपके 30 जूल्स लग रहे हैं, इफ यू आर require 30 joules, here maybe you also only require 12 joules, sorry 30 joules, so here you may require let's suppose 60 joules. So with catalyst your energy required will be less as compared to in the case when you are using it without catalyst. Without catalyst energy required will be more. Now this was this fifth parameter factor. Now we come to sixth, that is the important factor, that is temperature. टेम्परेचर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। Now we will come to the sixth factor, that is your temperature, a very important factor. Temperature I can say is a very important factor. As far as the rate of reaction is concerned. Now rate of reaction is affected by temperature very much. So generally we say, generally rate of reaction ROR increases upon increasing the temperature. जनरली क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करता है जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। Now it has been seen that on increasing temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स। ये देखा गया है कि जनरली ये कहा जाता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज हो जाता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, फॉर एग्जांपल यू आर कैरिंग सम रिएक्शन, एक रिएक्शन आप 15 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो और फिर आपने उसको 10 डिग्री बढ़ा के 25 डिग्री सेल्सियस पे कर लिया, और यहाँ देखा है लेट्स सपोज योर रेट ऑफ रिएक्शन वाज x, नाउ इट्स बीइंग सीन दैट हियर इट इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ x, यानी ये 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। सो ट्वाइस और थ्राइस इट विल इंक्रीज, 2 to 3 टाइम्स इसके बीच में। तो वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते हो उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इसको बेसिकली अगर आप समझने के लिए, अगर हम डिटेल में देखेंगे, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एरेनियस इक्वेशन, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू स्टडी इट इन डिटेल इन द फ्यूचर लेक्चर्स। और आपकी जो एरेनियस इक्वेशन है इसका बेसिकली k इज इक्वल ए ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ये उसका एक्सप्रेशन है बेसिकली। तो आपका जो k है बेसिकली इट इज़ रेट कांस्टेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रेट लॉ पढ़ेंगे उसमें हम रेट कांस्टेंट डिटेल में पढ़ेंगे। और a जो है आपका, इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एंड दिस ई ए इज योर एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली। And
R is your universal gas constant and T is basically the temperature at which reaction is carried out. So this is your Arrhenius equation. It's a very important equation as far as the effect of the rate of reaction on temperature is concerned. तो ये हम आगे डिटेल में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे. Now the last factor, it's a very important factor, that's your concentration. जहाँ पे आपका जो है order of reaction आता है. Where your order of reaction comes into play actually. जब भी concentration की बात आती है तो हम order of reaction की बात करते हैं. So your seventh one, the last one is concentration. Again, it's a very important factor for the rate of reaction. Now generally इसमें भी आपको जो है generally rate of reaction increases upon increasing concentration of reactants. आपका जो rate of reaction है वो generally increase हो जाता है upon increasing the concentration of the reactants. और rate of reaction may also decrease upon increasing the concentration of reactants. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जनरली ये देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका इंक्रीज हो जाता है एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो आपका बढ़ गया उसके साथ. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, सो देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस आल्सो, कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जब आप कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बढ़ाते हो. तो उल्टा भी हो सकता है. ये पहला है, ये दूसरा है. ये भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन may also remain unaffected. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अनएफेक्टेड रहेगा. तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका नहीं बढ़ेगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप उसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा भी रहे हो लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो रिमेन अनएफेक्टेड. रेट ऑफ रिएक्शन में also depend upon the concentration of products. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर सकता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी. तो वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है. अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोडक्ट्स का बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उससे भी अफेक्ट कर सकता है. तो ये भी आपका है. और ये भी देखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन ROR may depend upon concentration of one or none or all of the reactants concentration. जो लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इट में डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, और इट में डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इट में डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. तो ये एक रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है या किसी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, या जितने भी रिएक्टेंट्स उस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनका पार्ट है, तो ये उन सब के ऊपर डिपेंड कर सकता है. तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हमें जो है एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. वी हैव टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स in the lab. We have to conduct experiments, and then only we can be sure about this thing that कि how rate of reaction is depending upon the concentration of the reactants. वो reactants की concentration के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये आपको खाली कहाँ से पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने आपको लैब से. So only you can confirm these things from the lab. आप इसको खाली लैब से कंफर्म कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है उसके ऊपर, concentration of the reactants के ऊपर. So this was all about this
factors that affect the rate of the chemical reaction, or on which the rate of reaction actually depends. So we have discussed all these factors here in detail. So this is today's lecture was very much theoretical actually, so we didn't have anything numerical or something like we did some numerical questions, so it was all pure theoretical. So आपका जो है it can come in the board examination, like it can be some 5 mark this question in your board examination, और या आपको जो हमने डिटेल में पढ़ा है कभी कभी इसमें आपके entrance exam में भी कुछ पूछ सकते हैं. For example, like in case of this effect of temperature, we said like the rate of reaction generally increase 2 to 3 times. Like it can come in the entrance examination when the temperature increases by 10 degrees Celsius. So the rate of reaction may increase like 2 to 3 times, 3 to 4 times, 4 to 5 times, 6 to 7 times. So you have to keep this thing in mind. So question कुछ भी आ सकता है exam में, तो you have to prepare accordingly. Now before actually I will take the leave. So in the last lecture, in the rate of reaction, we, like as I said there, the rate of reaction, like rate of reaction for some simple reaction, if we write it here, because I have to tell you something. For example, if I have a reaction A plus 2B, it is giving me 3C. Now I have to write the rate of reaction. Like I am writing the average rate of reaction here, AVG average. So it will be minus 1 by 1 is del A by del T is equal to minus 1 by 2 del B by del T equals plus 1 by 3 del C by del. I think this thing should be now pretty clear to you all. So this is how you actually represent the rate of reaction mathematically. Now what actually I want to do, what's the unit of rate of reaction? Unit of rate of reaction, that is very important. जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन उसका यूनिट बेसिकली क्या है, तो वो यूनिट जो है हमें मालूम करने, उसके यूनिट्स क्या है. तो अगर आप यूनिट्स निकालना चाहोगे तो यूनिट्स आप यहाँ से निकाल सकते हो इस इक्वेशन से. तो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट्स है, तो माइनस 1 बाई 1 इसका कोई यूनिट नहीं होगा. डेल ए बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये आपका बेसिकली है कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या है डेल टी, वो टाइम है. तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आपको पता है. कॉन्सेंट्रेशन व्हाट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड वॉल्यूम होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स आपका बेसिकली वही है, तो वो आएगा मोल. लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ लीटर्स में ले रहे हो, तो ये आपका आएगा मोल्स डिवाइड बाय लीटर. टाइम आपका लेट्स सपोज ऐसा यूनिट्स में आप सेकंड लेते हो, तो इट्स बेसिकली योर मोल एम moles per liter per second. So this is basically the unit of the concentration. The units of this rate of reaction. So this is your unit of rate of reaction. Now this is generally used when you have the liquid concentration, like liquids. It's generally for liquids. Now for example, you have gases. Now how you can take the concentration of gases? Now, sometimes you have gases also. Now in case of gases, what's your concentration is like? It's concentration by time. Similarly, so concentration is generally intake of the pressure. The concentration of gas is taken as pressure, or we can partial pressure. So atmosphere by time. Then it can be atmosphere per second, atmosphere second inverse. So I have to tell this thing because in the last lecture I forget to tell this thing, so I wanted to cover it in this lecture. So unit of rate of reaction is very important. That's why I showed you here how you can actually find the units. So units of rate of reaction generally you have moles per liter per second. So with this I would like to stop the lecture here, and I hope you enjoyed today's lecture. So I'll be coming now again with another lecture that follows again, like after this topic, that's factor affecting rate of reaction. Now I hope we will start the next lecture. That will be most probably the rate law or rate equation or rate law expression. So till then, I would like to say goodbye and I wish you all the very best. Thank you.